Hello everyone. In this video, we are going to discuss theoretical framework, concept, meaning and definition of ethics. Before starting the video, if you are new to our channel, then please do subscribe the channel और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें. So let's begin. Here we will understand the concept of ethics. In the earlier video, we discussed the background of ethics, in which we discussed how our belief system helps us to take decisions. And that belief system affects the ethics, means our ethical framework is based upon our belief system. And the quality of decisions we take that depends and that is ascertained through our ethical framework. So here we will understand what is ethics. What is the concept of ethics? Firstly, ethics is derived from the Greek word ethos, which means custom, habit, character, or disposition or way of living. Ethics को ग्रीक वर्ड एथोस से डिराइव किया गया है, जिसका मीनिंग है रीति, आदत, चरित्र, स्वभाव और जीने का तरीका. Ethics studies the rightness or wrongness of a human action or behavior. एथिक्स स्टडी करता है एक ह्यूमन बिहेवियर के, एक मनुष्य के बिहेवियर या उसके एक्शन के सही होने या उसके गलत होने को, या उसके उचित या अनुचित को. So here we will understand what is wrongness and what is rightness. Like cruelty is considered wrong and kindness is right. Corruption is considered wrong and being honest is considered right. Hate, nafrat, that is considered wrong. Love and caring, these are right. Killing, किसी को मारना, that is considered wrong. Rightness, like live and let live, जियो और जीने दो, that is considered right. Rude, being rude to someone, किसी के लिए harsh होना, किसी के लिए विनम्र ना होना, that is considered wrong. Not polite to others, that is considered wrong. And humble, विनम्र होना, that is considered right. Worthless means having no value, जिसकी कोई कीमत नहीं. That जिसको हम कह सकते हैं निकम्मा. कई बार किसी इंसान के लिए कोई वर्ड यूज करते हैं, that this person is worthless means having no value, उसमें कोई भी क्वालिटीज या कोई भी गुण नहीं है. That can be considered wrong sometimes. And worthwhile means that is having value, इसमें कुछ क्वालिटीज हैं, कुछ गुण हैं, अच्छे गुण हैं, that is considered right. So here we will understand the meaning of ethics. What is ethics? Ethics is a branch of philosophy or social science that asks the practical and fundamental questions on different situations in our life. Like, what should we do? How do human persons ought to act? Means हमें क्या करना चाहिए और human persons को कैसे काम करना चाहिए. Means हमारे काम करने का ढंग, हमारे काम करने का तरीका कैसा होना चाहिए. How should we live? What is good and happy life? हमें कैसे रहना चाहिए, मीन्स हमारे जीवन जीने का तरीका कैसा होना चाहिए, एक अच्छा जीवन किसे कहते हैं. व्हाट इज फेयर, व्हाट इज राइट कंडक्ट, क्या सही है, क्या सही आचरण है. व्हाट इज द राइट थिंग टू डू. जब हमारे पास डिफरेंट चॉइसेस अवेलेबल हैं तो उनमें से क्या सही है और क्या गलत है, उस चॉइस को चूज करना. डूइंग व्हाट इज राइट, सही को चुनना और उसको करना. So ethics tries to define a condition of good choices and then work out which of our available choices is the best one. So ethics क्या करता है, एक कंडीशन को डिफाइन करता है. किस तरह की कंडीशन, अच्छी चॉइसेस की कंडीशन को डिफाइन करता है और फिर वह बताता है कि जो अवेलेबल चॉइसेस हैं उसमें से बेस्ट चॉइस कौन सी है. मीन्स हमें किसको चुनना चाहिए वह डिपेंड करता है एथिक्स पर, जिसके बेसिस पर एक पर्सन डिसाइड करता है कि कौन सी चॉइस सही है.
Thus, ethics is a branch of philosophy that deals with conduct, which is the guiding principle of good or bad. So ethics वह शास्त्र है जिसमें सही या गलत बिहेवियर के कंसेप्ट को परिभाषित किया जाता है, उसे विकसित किया जाता है और एक सही डिसीजन या चॉइस को रिकमेंड किया जाता है. Or we can say that ethics or moral philosophy is a branch of philosophy that involves systematizing, developing, defending, and recommending concepts of right and wrong behavior. Means ethics वह branch of philosophy है जिसमें कि एक person गलत या सही behavior को define करता है अपने तरीके से, अपने एथिक्स के बेसिस पर, अपने बिलीफ सिस्टम के बेसिस पर. जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि जब एक पर्सन को कोई डिसीजन लेना है, वह डिसीजन कैसे लेता है? वह डिसीजन लेता है अपने बिलीफ सिस्टम के बेसिस पर, और उसके बिलीफ सिस्टम को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लाइक वैल्यूज, लॉज, नॉर्म्स, उसके प्रिंसिपल्स, रिलीजन, कल्चर. तो ये डिफरेंट फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं उसके डिसीजन को लेने में. सो एथिक्स वह मोरल फिलॉसफी है या ब्रांच ऑफ फिलॉसफी है जिसमें कि एक पर्सन राइट या रॉन्ग बिहेवियर के कंसेप्ट को डेवलप करता है, डिफेंड करता है और एक सही चॉइस को लेने में उसकी हेल्प करता है. हाउ डू एथिक्स चेंज? एथिक्स हमेशा एक से नहीं रहते, एथिक्स चेंज होते रहते हैं. सो हाउ एथिक्स चेंज? एथिक्स एक पर्सन की एज, उसके एक्सपीरियंस, नॉलेज के साथ साथ चेंज होते रहते हैं. जैसे जैसे एक पर्सन की एज, उसके एक्सपीरियंस, नॉलेज या फिर उसकी तार्किक क्षमता बढ़ती है, उसके अकॉर्डिंग एक पर्सन के एथिक्स भी चेंज हो सकते हैं. लाइक जब एक पर्सन अपने जीवन की शुरुआत करता है, वह चाइल्डहुड स्टेज में होता है, तो उसको बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि क्या मोरल वैल्यूज़ वह अपनी फैमिली से लेता है, किस कल्चर में वह पला बड़ा है, किस रिलीजन से वह बिलोंग करता है, कौन कौन सी ट्रेडिशंस हैं जो कि उसकी लाइफ को अफेक्ट करती हैं, क्या उसके बिलीव्स हैं, व्हाट इज़ हिज डिसिप्लिन. और जैसे जैसे वह आगे ग्रो करता है, उसकी लाइफ में कुछ वैल्यूज डेवलप होती हैं, कुछ लॉज, कुछ प्रिंसिपल्स, उसके कुछ सिद्धांत बनते हैं, कुछ लीगल रूल्स को वो समझता है, डिबेट करता है, रीजनिंग मीन्स उसकी तार्किक क्षमता बढ़ती है. और उसके साथ साथ जब वह एक अडल्ट एज के बाद अपने जीवन को जी लेता है, तो उसकी लाइफ के कुछ स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं, वर्च्यूज डेवलप हो जाते हैं. वर्च्यूज मीन्स वह बिहेवियर जो हाई मोरल स्टैंडर्ड्स को शो करता है, कुछ पॉलिसीज, उसके जीवन के कुछ नियम होते हैं. तो इस तरह से एक पर्सन अपनी लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ता है. तो जैसे जैसे एक पर्सन लाइफ में आगे बढ़ता है, वह धीरे धीरे, शुरू में उसकी लर्निंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बहुत सारी चीज़ों को सीखता है, और जैसे ही वो ओल्ड एज पे पहुंचता है, लर्निंग एबिलिटी एक पर्सन की कम हो जाती है, बिकॉज उस समय तक वह अपने जीवन को जी चुका होता है और बहुत सारी चीज़ों को जीवन में एक्सपीरियंस कर चुका होता है, लर्न कर चुका होता है, तो उसकी वहाँ पर लर्निंग एबिलिटी कम हो जाती है. बट एक पर्सन की प्रोडक्टिविटी चाइल्डहुड स्टेज में कम होती है, बट जब वह अडल्ट एज में आता है, एक मेच्योर पर्सन बनता है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. सो जैसे जैसे एक पर्सन की लर्निंग एबिलिटी, प्रोडक्टिविटी में चेंजेस होते हैं, उसके एथिक्स में भी चेंजेस होते हैं. एथिक्स चेंजेस विद द एक्सपीरियंस, एज, नॉलेज, रीजनिंग एबिलिटी, discussion or debate outcome, etc. It shows that ethics keep on changing within a person. एथिक्स एक पर्सन की एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ, उसकी एज के साथ, जैसे जैसे उसमें उसकी नॉलेज इंक्रीज होती है, रीजनिंग एबिलिटी डेवलप होती है, डिस्कशन एबिलिटी डेवलप होती है, वह डिबेट्स में पार्टिसिपेट करता है, लोगों से डिस्कशन करता है,
उसकी तार्किक क्षमता बढ़ती है, उसके साथ साथ एक पर्सन के एथिक्स भी चेंज होते हैं। सो एथिक्स एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसा थेरेटिकल फ्रेमवर्क है जो कि एक पर्सन में चेंज होता रहता है। सो एथिक्स आर नॉट सम फाइनल कंक्लूजन। एथिक्स एक अंतिम निष्कर्ष नहीं है, रादर एथिक्स आर थेरेटिकल फ्रेमवर्क दैट इज चेंजिंग विद चेंज ऑफ आवर बिलीफ सिस्टम। बल्कि एथिक्स एक अनुमानित रूपरेखा है जो कि हमारे बिलीफ सिस्टम के चेंज होने के साथ साथ चेंज होती रहती है। Here we will understand the theoretical framework of ethics, or we can say it triangle of human belief system. In our human belief system, there are many factors as we have studied in the earlier video also, like the culture, religion, tradition, and beliefs, and that develops our moral values, laws, principles, legal rules, debate, experience, and our reasoning ability. And because of it, some virtues are developed in a person. Virtues means behavior which shows high moral standards, and some virtues are developed, standards are established, some policies are developed by a person for his life, and that creates human conscious. So what is the theoretical framework of ethics? First, ethics refers to well-based standards of right and wrong that prescribe what humans ought to do, usually in terms of rights, obligations, and benefits to society, fairness, or specific virtues. Ethics का मीनिंग है वह वेल बेस्ड स्टैंडर्ड्स, राइट और रॉन्ग बिहेवियर के, जो कि एक पर्सन को करने चाहिए। जनरली वह डिफाइन किए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ पर्सन्स राइट। एक पर्सन के क्या अधिकार हैं, उसके क्या उत्तरदायित्व हैं, क्या सोसाइटी को उसके एक्शंस के बेनिफिट्स होंगे, और उसके क्या हाई मोरल स्टैंडर्ड्स हैं, सोसाइटी को उसके काम का क्या फायदा होगा। Ethics, for example, refers to those standards that impose the reasonable obligations to refrain from stealing, murder, rape, assault, slander, and fraud. फॉर एग्जाम्पल, एथिक्स वे स्टैंडर्ड हैं जो एक पर्सन को उसके उत्तरदायित्व के बारे में बताते हैं, जिससे कि वह गलत या बुरे कामों से, जैसे कि चोरी, मर्डर, फ्रॉड, इन सब गलत कामों से दूर रहता है। मीन्स एक पर्सन का समाज के लिए कुछ उत्तरदायित्व है जिसको वह समझता है। एथिक्स उसको यह समझाते हैं, जिसकी वजह से उसको यह लगता है कि चोरी करना गलत है। जो भी बुरे काम है, लाइक हमने डिफाइन किया, देयर आर सम एक्ट्स which are defined as wrong acts and some are right. तो एक पर्सन को सही और गलत के बीच में फर्क समझ आता है और उसका समाज के लिए क्या उत्तरदायित्व है, क्या रीजनेबल ऑब्लिगेशंस हैं, वो इम्पोज करते हैं एथिक्स एक पर्सन के ऊपर, जिसकी वजह से वह इन सभी बुरे कामों से दूर रहता है और वह उसको ऐसा करने से रोकते हैं। And ethical standards also include standards relating to rights such as right to life, the right to freedom and right to privacy. और इसके अलावा ethical standards में इस तरह के standards भी included हैं जिसमें कि हमारे अधिकारों से संबंधित स्टैंडर्ड्स हैं, जो अधिकार हमें दिए गए हैं, जैसे कि जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, निजता का अधिकार, जो अधिकार हमारे पास हैं, होने चाहिए, इस तरह के स्टैंडर्ड्स भी एथिकल स्टैंडर्ड्स में इंक्लूड किए जाते हैं। मोरओवर, ethical standards also include those that enjoin virtues of honesty, loyalty and compassion. इसके अलावा एथिकल स्टैंडर्ड्स में और कुछ वर्च्यूज भी इंक्लूडेड हैं। वर्च्यूज मीन्स द बिहेवियर शोइंग हाई मोरल स्टैंडर्ड्स, वो बिहेवियर जो कि हमारे जीवन में हाई मोरल स्टैंडर्ड्स को शो करता है, जैसे कि ऑनेस्टी, ईमानदारी, वफादारी,
कंपैशन, सहानुभूति रखना किसी पर्सन के लिए, दया भाव रखना, करुणा भाव रखना। तो इस तरह की जो गुड क्वालिटीज हैं, वो वर्च्यूज भी एक पर्सन की लाइफ में डेवलप होते हैं। उससे रिगार्डिंग स्टैंडर्ड्स भी एथिकल स्टैंडर्ड्स में इंक्लूड किए जाते हैं। सो दिस इज द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ ethics upon which it is based. Here we will understand some of the definitions of ethics. In the words of Peter F. Drucker, ethics deals with right actions of individuals. Ethics किससे डील करता है? एक पर्सन के right action से. In the next video, we'll elaborate this topic further. Then we will understand the ethics can vary person to person. Ethics is a situational factor. Sometimes a right action for a person can be wrong for the other. So here ethics deals with the right actions of individuals. मीन्स एथिक्स एक पर्सन को डिफाइन करता है कि क्या उसके लिए सही है और क्या गलत है, और वह उसके राइट एक्शन से डील करता है. Another definition by Philip Wheelwright. Ethics is the branch of philosophy which is the systematic study of selective choice of the standards of right and wrong, and by which it may ultimately be directed. एथिक्स एक ब्रांच ऑफ फिलोसफी है जो कि इस तरह की फिलोसफी है विच इज अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सिलेक्टिव चॉइस, जिसमें कि हम एक सिलेक्टिव चॉइस की सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं. मींस जब हमारे पास डिफरेंट अवेलेबल चॉइसेस हैं और हमें उसमें से एक सही चॉइस को चूज करना है, एक बेस्ट चॉइस को चूज करना है कि हमारे लिए सबसे सही क्या होगा, तो उसकी एक सिस्टमेटिक स्टडी है जो कि एक ऐसा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जिसके बेसिस पर हम उस बेस्ट चॉइस को चूज करते हैं ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग एंड बाय विच इट में अल्टीमेटली बी डायरेक्टेड. मींस एथिक्स वह स्टैंडर्ड सेट करते हैं जिसके द्वारा सही और गलत के बीच का फर्क हमें समझ आता है और जिसके द्वारा हमारे एक्शंस अल्टीमेटली डायरेक्टेड होते हैं. मींस हम सही की तरफ मूव करते हैं, राइट एक्शंस की तरफ मूव करते हैं. मीन्स हमारे एक्शंस को डायरेक्ट करता है. सो एथिक्स रेफर्स टू द स्टडी ऑफ वैल्यूज एंड कस्टम्स ऑफ अ पर्सन और ग्रुप. इट कवर्स द एनालिसिस एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंसेप्ट्स सच एज राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड इविल, and responsibility for individuals and society, and is also described as moral philosophy. Ethics का मीनिंग क्या है? Ethics रेफर करता है एक ऐसी स्टडी दैट इज द स्टडी ऑफ वैल्यूज एंड कस्टम्स ऑफ अ पर्सन और ग्रुप. एक पर्सन की वैल्यूज और उसके कस्टम्स की स्टडी से रिलेटेड स्टडी है एथिक्स, जिसमें कि हम कौन से कंसेप्ट्स को एनालाइज करते हैं. हम एनालाइज करते हैं राइट और रॉन्ग को, सही और गलत, अच्छे और बुरे के बीच में क्या फ़र्क है, उनके कंसेप्ट्स को एनालाइज करते हैं और एक पर्सन अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है, साथ में सोसाइटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डिस्क्राइब किया गया है एज अ मोरल फिलोसफी in terms of ethics. So this is the theoretical framework of ethics and some definitions of ethics. In the next video, we will elaborate this topic further. Thanks for watching the video. Please do subscribe the channel, like the video and share it with your friends. And please give your comments in the comment box about how did you like the video. Thank you. Have a nice day.